AS level, paper 1, multiple choice question, October, November 2024, variance 12. Question number 1. Which species contain a different number of electrons from the other three? Okay. So first of all, we need to find out the total number of electrons in each particle. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. सो 17 प्लस 24 प्लस 1 is going to be, oh my bad, 8 times 8 plus 17 plus 1, it's 50 electrons. All right, H2SO4 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 मल्टीप्लाई बाय 4, so total electron would be 16 plus 2 plus 8 times 4 is becomes 50 electrons. Sulfate, sulfur is 16, oxygen is 8 multiply by 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, 2 माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, so 16 plus 8 times 4 plus 2 is going to be 50. So examiner was looking for the different number of electrons. तो इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, and so D is going to be the right answer. Okay. Now terrarium has an atomic number of 52, I believe. आप periodic table से ये चेक कर सकते हैं, because इसके ऊपर अगर 2 माइनस चार्ज है, if it has 2 minus charge, then it means it is found in group 16 of the periodic table. आप group 16 में जाइए, इस सिंबल को चेक कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर आपको 52 मिलेगा. Since it has 2 minus, इसका मतलब इसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स है. Okay, so D is going to be the right answer for question number 1. Which factor causes helium to have a higher first ionization energy than hydrogen? By the way, hydrogen है आपके पास और उसके बाद helium है, so ये period 1 element है, right? And across the period, ionization energy increases. और across the period ionization energy क्यों increase होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज रिलीज होता है. All right. So right answer obviously is going to be C, because nuclear charge of helium is higher than that of hydrogen. Question number 3. 0.216 gram of aluminum carbide reacts with an excess of water to produce methane gas. This is the only carbon containing product formed in the section. This methane gas is completely in oxygen to form carbon dioxide and water. Volume of carbon dioxide. इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, बट जो एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दी है मेरे ख्याल से उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना जरूरी है. Otherwise, with respect to shortcut, I'll get the answer in seconds, right? But the values given is really, really important. Let's use those values. मैं सबसे पहले moles of carbon dioxide कैलकुलेट करूंगा. मुझे वॉल्यूम गिवन है 108 cm क्यूब, मैं इसको 24,000 cm क्यूब से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स मिलेंगे. It's become 4.5 into 10 to the power minus 3 moles. स्पेस बहुत कम है हमारे पास, वर्किंग बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की. सेकंड स्टेप, जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने डिटरमिन किए हैं, एग्जैक्टली वही मोल्स ऑफ कार्बन भी होंगे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन हैज 1:1 रेशियो. तो अगर आपने 4.5 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए, तो ऑब्वियसली कार्बन के भी सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे. मोल्स ऑफ कार्बन आ गए.
ऑब्वियसली मोल्स ऑफ कार्बन के थ्रू मैं मास ऑफ कार्बन डिटरमिन कर सकता हूं. तो मोल्स ऑफ कार्बन को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा relative atomic mass of carbon से, which is 12 into 12, so it's going to be 0.054 gram. हम सब जानते हैं कि मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ सैंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा. So mass of aluminum 0.216 minus answer is going to be 0.162 gram. All right. We know the mass of aluminum. We know the mass of carbon. By using these two values, I can find the moles. So ये है मेरे पास aluminum, ये है मेरे पास carbon. All right. ये है मेरे पास 0.162 और ये है मेरे पास 0.054 ग्राम. इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो 27 से. So moles of aluminum would be 6 into 10 to the power minus 3 moles. 0.054 divided by 12. So it's going to be 4.5 into 10 to the power minus 3. So basically this is the least value. इसको divide कर देते हैं हम on both the side. So 6 exponent minus 3 divided by answer is going to be 1.33. और ये 1 हो जाएगा. इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए into 3 करो. इसको भी into 3 करो. ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3. इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो आपके पास 4 है, कार्बन आपके पास 3 है. And therefore on the basis of that I suggest D is going to be the right answer. Okay. Al4C3. अब इसका शॉर्टकट भी बता देते हैं आपको. शॉर्टकट ये है कि एल्यूमिनियम हैज 3 प्लस चार्ज, और क्योंकि एल्यूमिनियम कार्बाइड एक आयनिक कंपाउंड है, which means इस आयनिक कंपाउंड में कार्बन हैज 4 माइनस चार्ज. जब चार्जेस डिफरेंट होते हैं तो चार्जेस एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं. जब चार्जेस एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा Al4Ca3 and that's your D. Okay, that's a shortcut technique. बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम ने वैल्यूज क्यों दी हैं, किस लिए दी हैं और वो किस तरह से यूटिलाइज होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. A reaction between two gases takes place on the surface of the catalytic converter of a petrol engine car. In this reaction, 4 reacting molecules produces 3 product molecules. What could be the 2 reactant gases in this reaction? Well, we have done this equation in the class. 2NO gas reacting with 2 carbon monoxide gas converting into 2 carbon dioxide and nitrogen. So आप नोट करें ये 4 मोल्स हैं, ये आ गए. और आप नोट करें ये 3 मोल्स हैं, ये आ गए 3 मोल्स. सो एग्जामिनर पूछ रहे हैं 2 रिएक्टेंट गैसेस इन दिस रिएक्शन. तो ये 2 रिएक्टेंट गैसेस हैं इन दिस रिएक्शन, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. Okay. Question number 5. An ion contain 1 nitrogen atom and 2 hydrogen atom. Okay. एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला बनेगा NH2. और वो कह रहे हैं आयन है, तो आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Obviously, examiner is saying that this bond angle has an approximation of 105. What is the correct value? So this needs to be negative charge
So let me draw the structure. Nitrogen belongs to group 15, so it has 5 valence electrons. 1, 2, 3, 4. This one is 5. This negative charge means it will gain one more electron. So आप नोट कीजिए, अराउंड नाइट्रोजन 2 लोन पेयर हैं, अराउंड नाइट्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड है. सो टोटल इज गोइंग टू बी 4 लाइंस ड्रॉ करूंगा मैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3. So whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, then the angle is going to be 104.5 degree. 105 degree लिख दिया है. Okay. How much charge on the nitrogen atom? -1, obviously. So right answer is going to be D. Okay. And we have done this example in the class. Okay. Chemical bonding में मैंने आपको hybridization करवाई है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल करवाया. दोनों टॉपिक्स के अंदर मैंने ये एग्जांपल ली हुई. क्वेश्चन नंबर 6. Why ICl has a higher boiling point than bromine? Because bromine नॉन पोलर है, इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी. whereas ICl is a polar covalent molecule because electron negativity का difference exist कर रहा है, because chlorine is more electronegative element and iodine is less electronegative element. So it is polar, and since it is polar, it exhibits permanent dipole forces, and obviously permanent dipole forces is stronger than ID forces. On the basis of that, I can suggest Bravo is the right answer. I mean, B is going to be the right answer because of the difference in the polar nature of ICl and bromine. Bond energy has nothing to do with the boiling point. Number of electrons हम उस वक्त लेते हैं जब दोनों नॉन पोलर हो. जब दोनों नॉन पोलर होंगे तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, फिर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, राइट. ऑल्सो relative molecular mass has nothing to do with the boiling point. Okay, so option A, C and D incorrect. My goodness. Next question is question number 7. In this question, you may assume that nitrogen behaves as an ideal gas. 1 atmospheric pressure is 101 kilopascal. What volume does 1.0 gram of nitrogen occupy 50 cm3 when a pressure of 2 atmosphere? Okay. ये 2 एटमॉस्फेयर है, तो अगर इसको मैं पैस्कल में कन्वर्ट करूंगा तो याद रखिएगा कि 1 किलोपास्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस मच, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू दिस मच किलोपास्कल एंड 1 किलोपास्कल इक्वल्स टू 1000. सो ये हो जाएगा आपके पास 202,000 पास्कल्स, राइट, कन्वर्जन के हिसाब से, बिकॉज 1 atm इक्वल्स टू दिस मच किलोपास्कल एंड 1 किलोपास्कल इक्वल्स टू 1000 पास्कल, राइट. तो अगर एग्जामिनर ने आपको 2 एटमॉस्फेयर दिया है तो obviously pressure needs to have to be 202,000 pascal. Temperature 50 degree Celsius है. Obviously जब इसमें 273 ऐड करेंगे तो it's going to be 323 Kelvin. This is mass of nitrogen and MR of nitrogen is 28. Well, I need to find out the volume. So मेरे पास जगह बहुत कम है. So I'll try to fix this calculation here. PV equals to nRT. मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ in terms of mass. ये हो जाएगा PV equals to mass RT upon MR.
मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो एम आर टी अपॉन पी इंटू एम आर, लेट्स प्लग इन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। V इक्वल्स टू मास है मेरे पास 1.0 ग्राम, R की वैल्यू इज फिक्स विच इज 8.31, टेम्परेचर मेरे पास है 323 केल्विन, divided by pressure, pressure is 202,000 pascals into mr, mr of nitrogen is 28, so obviously यहां से मुझे वॉल्यूम मिलेगा 4.75 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। इसको cm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से, तो वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लेट मी चेक हाउ मच वॉल्यूम वी आर गेटिंग हियर। 4.75 exponent minus 3 divided by 1.0 exponent minus 6, so it's going to be 47 oh my bad, ये -4 है, ये भी -4 है। okay, this is -4, this is -4, let me check again। 4.75 exponent minus 4 divided by 1.0 exponent minus 6, so it's going to be 475 cm cube, so close answer is going to be C। okay, question number 8, which statement about the properties associated with the different types of bonding involved is correct? Examiner is saying any covalent compound that contains both oxygen and hydrogen in its molecule forms hydrogen bonds. That's absolutely incorrect, क्योंकि ये स्टेटमेंट तमाम मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे CH3 CH2 O CH2 CH3, मैंने ये एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक में करवाई थी। इसको कहते हैं डाई इथाइल ईथर। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एनी कोवलेंट कंपाउंड, नॉट एनी, सम कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, विच इज व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स कैन नॉट बोथ अकर इन द सेम कंपाउंड, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों होती है। मिसाल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड, इसमें आयनिक कोवलेंट दोनों हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम नाइट्रेट, इसमें आयनिक कोवलेंट दोनों हैं। सो ये भी गलत। ऑप्शन सी, ionic compounds differ from metals in that ionic compounds do not conduct electricity in the solid state, or metals do conduct electricity in the solid state, so that is the most sensible option, right? Let's talk about B. Only covalent compounds with high melting points are those in which hydrogen bonds occur. Incorrect, because diamond, graphite and sand, which is also called silicon dioxide, इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द दोस कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हिच एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो ओनली की टर्म है वो गलत है। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, व्हिच इज व्हाई आल्सो इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 4, फॉर व्हिच रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? तो पहली बात ये कि जब एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बात आती है तो हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके,
अच्छा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के बाद हमें ये भी देखना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यूज हों। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ये 3 चीजें देखनी है। सो पहली बात, ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, एग्जामिनर ने गैस कर दिया है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कार्बन इज सॉलिड, राइट, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, ये 1 मोल है, करेक्ट। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। दैट मींस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट सी। सी इज इनकरेक्ट क्योंकि ये कंपाउंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक। ये भी कंपाउंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन 10। माय गुडनेस, देयर सो मच, बहुत ही कम स्पेस है भाई। 2 एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज आर गिवन। बाय द वे, फॉर्मेशन का डेटा इज गिवन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, आसान है ये। इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। 2 VCl2 2 VCl3 plus Cl2. We need to find out the value of this reaction, and since formation का data is given in the question, which means constituent elements से start होगी Hess's law cycle, and I need only 2 constituent elements in order to make VCl2 and VCl3. The first one is vanadium and the second one is chlorine. Arrow upward होने चाहिए formation का data जब भी मिलता है। VCl2 की value is -452. We have 2 moles in the formula, in the equation, multiply by 2. VCl3 is -573. Since we have 2 moles into 2, clockwise direction में arrow, let's rearrange this value. ये दोनों की दोनों values plus ये minus equals to 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x plus -452 times 2 minus -573 times 2 equals to 0. Then x minus, ये हो जाएगा 1356 और ये हो जाएगा आपके पास 1146 equals to 0. Then x equals to plus 210 kilojoules per mole. So right answer obviously is going to be D. Question number 11. Equations for some reactions of hydrogen peroxide are given. In which reaction is hydrogen peroxide acting as a reducing agent? अगर ये reducing agent है, so obviously it must be an oxidizing agent. क्यों? क्योंकि being an oxidizing agent, ये आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद रिड्यूस होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन ऑब्वियसली इट मस्ट बी योर रिड्यूसिंग एजेंट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड, अगर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयरन 3 आयंस, सो ऑब्वियसली ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, क्योंकि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए वो आयरन 3 आयंस को रिड्यूस करके आयरन 2 आयंस में कन्वर्ट कर रहा है और खुद कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। इसी तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO4 नेगेटिव को यानी मैग्नेट 7 आयंस को रिड्यूस करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सो सेकंड एंड थर्ड, आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question 12. The equation for the reaction of aqueous thiosulfate ions and with dioxovanadium ions is shown.
which row shows two correct statement about the equation for this reaction? Okay, we need to balance this equation by using ion electron rule. So ion electron rule apply करने हमने. So कर लेते हैं, कोई issue नहीं है. The first one is S2O3 2 negative. It is converting into S4 O6 2 negative. All right. How many sulfur here? 4. So हम यहां पर 2 लिखते हैं. All right. We have 6 oxygen here. We have 6 oxygen here. We have 2 minus charge. We have 2 minus charge here. No. We have 2 minus charge here and we have 4 minus charge here. So charge balance होना चाहिए on both the side, which is why मैं यहाँ पर 2 electron लिखूंगा. Now let's talk about VO2 plus. It is converting into VO2 positive. How many oxygen here? 2. How many oxygen here? 1. तो oxygen को balance करने के लिए I will use 1 water molecule here. We have 2 hydrogen atoms here. तो हम यहाँ 2 hydrogen ions लिखेंगे. Let's balance the charge. यहाँ पर charge है 2 plus और यहाँ पर charge है 3 plus. So इस 3 plus को 2 plus में convert करने के लिए I will use 1 electron here. हम सब जानते हैं कि number of electrons balance होने चाहिए, इसलिए मैं इस equation को 2 से multiply करूंगा. Electrons balance होकर cancel हो जाएंगे and I'll get the final equation. तो final equation हमारे पास है 2S2O3 2 minus plus 2 VO2 plus 4 hydrogen ion, then 2 VO2 positive plus S4 O6 2 negative. Okay. My goodness, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. This is your x की वैल्यू. ये आपके पास y की वैल्यू है और ये आपके पास z की वैल्यू है. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम. माय गुडनेस, ये भी कैलकुलेट करें. ओके यार, ये तो सैड सीन है. वेनेडियम, यहां पर वेनेडियम को x लो. ऑक्सीजन का चार्ज इज -2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू +1, देन x इक्वल्स टू +5. यहां पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करो. x लो, ऑक्सीजन का चार्ज इज -2, होल चार्ज इक्वल्स टू +2, देन x इक्वल्स टू +4. तो इसका मतलब वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 से +4 में जा रही है. सो +5 to +4 इज हियर, +5 to +4 इज हियर. ओके. अच्छा, वो कह रहे हैं कंपैरिजन ऑफ x y and z. x y and z. तो x और z दोनों सेम है और ये y जो है ये उसका डबल है, z का डबल है या x का डबल है. ठीक है, तो देखते हैं. x and z आर सेम वैल्यू, ये बात बिल्कुल ठीक है. एंड क्वार्टर ऑफ वैल्यू ऑफ y, क्वार्टर तो नहीं है. x and z are the same values and quarter of the values of y, ये quarter नहीं है. Next देखो, x and z are the same value, ये बात बिल्कुल ठीक है. And how the value of y, that's correct also. y की वैल्यू को हाफ करो तो 2 आता है, right? So I believe right answer is going to be C. Question 13. When some solid is added to beaker of water and equilibrium is set up, which compound when added to the equilibrium mixture increases the amount of this? If you need to increase the amount of this, equilibrium have to be shift in the towards reactant side, towards left hand side. और equilibrium left hand side पे उसी वक्त shift होगा जब आप कैल्शियम इंक्रीज करोगे, फॉस्फेट इंक्रीज करोगे या हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज करोगे. ऑलराइट. ऑब्वियसली ये न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है
ये चेंज नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम को। कॉन्जुगेट हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन हाइड्रो, दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम, equilibrium favors towards life right hand side. और बेटा ये भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, सेम एक्सप्लेनेशन है फॉर एथेनिक एसिड। सही है, सेम एक्सप्लेनेशन, बट यहां पर कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा, इट्स जस्ट एन एसिड। सो दिस एथेनिक एसिड can react with hydroxide ion, so this decreases the concentration of hydroxide ion, favors the equilibrium towards right hand side. Okay, तो ये भी गलत, ये भी गलत। right answer obviously is going to be a name. So आपने नोट किया मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर किया ये है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थी मैंने उनको सबसे पहले हाईलाइट किया, उनको सबसे पहले कोट किया, तो जो करेक्ट ऑप्शन थी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गई। और आप सब जानते हैं इसकी रीजन भी देख लीजिए, हम इसको कहते हैं एक्वस अमोनिया, एंड एक्वस अमोनिया मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, gaseous hydrogen and gaseous iodine react to form gaseous hydrogen iodide. ओके, सो मेरे पास इनिशियल मोल्स हैं, ये है मेरे पास 2, ये भी मेरे पास है 2, और ये है मेरे पास 0। इक्विलिब्रियम मोल्स मेरे पास नहीं है, तो लेट सपोज यहां से x मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो यहां से भी x मोल्स रिएक्ट होंगे, और जाहिर सी बात है x मोल्स प्रोड्यूस होंगे, सिंस इट इज 2 मोल, तो वो हो जाएगा आपके पास 2x, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ओके, यहां से x मोल्स रिएक्ट होंगे तो बच जाएंगे 2 माइनस एक्स, x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो x मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स बनेंगे x, सिंस इट इज 2 मोल it becomes 2x. The value of Kc is already given, that is 9. An examiner is looking for the number of moles of hydrogen iodide at equilibrium. So examiner is looking for this value, right? तो ये हम Kc की वैल्यू कर लेते हैं, Kc हो जाएगा आपके पास 2x पावर स्क्वायर बिकॉज ऑफ 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर। Kc की वैल्यू इज 9 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली यहां पर सबसे आसान काम कि मैं अंडर रूट ले लूं, तो जब मैं अंडर रूट लूंगा ऑब्वियसली तो यहां से मुझे 3 मिलेगा, इक्वल्स टू यहां से मुझे 2x मिलेगा, और यहां से मुझे 2 माइनस एक्स मिलेगा, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, राइट। तो यहां से हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5x। तो अगर यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा बेटा 6/5, राइट। और 6/5 हो जाएगा, तो 6/5 मेरे पास आंसर आ रहा है 6/5 1.2। सही है, मुझे एग्जामिनर ने कहा है कि आप
हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स डिटरमिन करें एट इक्विलिब्रियम, तो उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने थे? 2x। सो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x। सो ऑब्वियसली 2 तो एज इट इज रखूंगा और x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 1.2। सो इट्स गोइंग टू बी 2.4 and that's my answer. So right answer is going to be D. Okay. Why does a rate of gaseous reaction increases when the pressure is increased at a constant temperature? Okay. तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस्ड होते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर, so the space between the gaseous molecules decreases and therefore gaseous molecules collide more frequently with each other. So gaseous molecules के दरमियान जो है वो effective collision increase हो जाता है, which is why right answer is going to be D. Okay. नहीं जी, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो स्पेस कम हो जाती है, इसलिए गलत। पार्टिकल्स मूव फास्टर, ये भी गलत क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से होता है एंड टेम्परेचर इज बेसिकली कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्टर नहीं होगी। ठीक है। दिस यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस एंड सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट व्हिच मींस ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। The Boltzmann distribution for a mixture of gases capable of reaction is shown. The two curves represents the mixture of gases at 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. By the way, every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate of reaction doubles. ये जहन में रखिएगा बात। और दूसरी बात ये कि आपके पास एक लो टेम्परेचर है तो उसको हम T1 कर देते हैं, एक हाई टेम्परेचर है तो हम उसको T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके। द एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर द कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस आर शोन। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली अप्लाई किए हैं, एक टेम्परेचर को इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट है और एक यूज ऑफ कैटलिस्ट। सो दो सेपरेट ग्राफ होते हैं हमेशा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, एग्जामिनर ने उनको अमेलगमेट करके यहाँ पर लिखा। सो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को सेपरेट सॉल्व करें और अपना आंसर जज कर सकते। सबसे पहली बात, ये आपका लो टेम्परेचर है, दैट इज T1, और इस लो टेम्परेचर का अगर मैं कर्व देखूं ये, तो इस कर्व में जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलाइज्ड रिएक्शन की वो ये है। सही है। तो इसके जो मैंने वो देखना है स्केचेस, वो एक ये होगा विच इज y और एक ये होगा विच इज z। ओके, y एंड z एट लो टेम्परेचर। देखो ना, ये लो टेम्परेचर है और फिर वो कह रहा है कैटलाइज्ड रिएक्शन भी है, तो वो कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, चेक करो। तो अब मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, बल्कि मैं इस पे स्केच कर देता हूं। ये आपका लो टेम्परेचर का स्केच है और इस लो टेम्परेचर के लाहौल वाला पूरा, इस लो टेम्परेचर के स्केच में जो कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसका स्केच ये है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये एरिया चेक करूंगा और मैं ये वाला एरिया चेक करूंगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, ये आपके पास y है, ये आपके पास z है, तो y प्लस z लूंगा मैं। ये आ गया, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका लो टेम्परेचर का। अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज कर लेते हैं ये वाला, ये देखिएगा जरा, ये हाई टेम्परेचर है आपका
सही है, दिस इज योर T2। अच्छा, जब T2 है आपके पास, हाई टेम्परेचर है आपके पास, तो आप नोट करें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी टेक्निकली ये होगी आपके पास। सही है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ये है तो जाहिर सी बात है आप ये स्केच देखोगे पूरा का पूरा, और इस स्केच में x भी आ रहा है, इस स्केच में z भी आ रहा है। सो ऑब्वियसली x एंड z देखोगे तो ये रहा x एंड z, एंड देयरफॉर D इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 17। माय गुडनेस, व्हिच ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास एल्कली है, and this oxide must be basic oxide क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ये रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए रॉन्ग। ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों रिएक्शन कर लेंगे, इसलिए दोनों रॉन्ग। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए, बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड है और ये इस एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इनसॉल्युबल होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम एंड सल्फर आर बर्न सेपरेटली इन ऑक्सीजन। तो जब सोडियम को हम सल्फर के साथ, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, सो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अगर आपको याद हो, इट बर्न्स विद अ येलोइश ऑरेंज फ्लेम, राइट? ठीक है, लेकिन अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं, it will turn to sulfur dioxide and obviously it burns with a blue flame. So right answer obviously is going to be C. X and Y are elements in period 3 of the periodic table. तो period 3 के जो element है उनको लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। ओके, ये हमारा पीरियड 3 एलिमेंट्स आ गए। वो कह रहे हैं y has a greater atomic number than x। so ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, सो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो y का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू x। सो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है भाई, क्योंकि सबके साथ इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है। सो लेट्स आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं द स्टेबल लाइन फॉर्म बाय x हैज अ ग्रेटर रेडियस देन द स्टेबल लाइन फॉर्म बाय x। तो याद रखिएगा कि ये y जो है वो एक स्टेबल आइन बना रहा है और उसका ग्रेटर रेडियस है। सो भाई ग्रेटर रेडियस हमेशा एन आइन का होता है। सही है, तो इसका मतलब ये जो y है इट मस्ट बी अ नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल्स फॉर्म्स anion and anions have larger radius. That's what we have done in the periodicity का chapter, even in atomic structure। तो भाई इसके ऊपर चार्ज कितना है 3 माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना है 1 माइनस। तो ये सारे के सारे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनाइन। सही है, और इन सबका लार्जर रेडियस है। वो कह रहे हैं देन द स्टेबल आइन फॉर्म बाय एक्स। तो इसका मतलब एक्स जो है वो कैटाइन बनाएगा, क्योंकि कैटाइन जो है वो उनका स्मॉलर रेडियस होता है, राइट? सो ये +1, ये 2+, ये 3+, और हम इसको 4+ ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। तो ये आपके कैटाइन हो गए। सिलिकॉन भी कैटाइन में आता है, मैंने लिखवाया आपको, ठीक है, और इसका होता है स्मॉलर रेडियस। वो कह रहे हैं स्टेबल आयन फॉर्म बाय Y हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके जनाब, आप नोट करें,
यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप नोटिस करें 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वो कह रहे हैं द स्टेबल आयन फॉर्म बाय Y हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो Y है ये फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सही है, क्योंकि यहाँ सब में तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आपसे एलिमेंट विद द ग्रेटर एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। सही है, तो इसका मतलब इनका एटॉमिक रेडियस कम होगा, इनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा इन तीनों में से किसका होगा? सोडियम का। तो इसका मतलब एक्स का एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा है। बिकॉज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस इन डिक्रीजेस। ये बात भी याद होनी चाहिए। इसको आप एक्स क्या लीजिए, इसको आप वाई क्या लीजिए, और अब आप यहां पर एक पॉइंट और बताइए कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स का एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेबल ऑफ एक्स आइन। अब अगर एक्स ये है तो इनके जो आयन है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए। ओके, काफी एनालिसिस थी इसमें वैसे, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 20, x is a group 2 element in either period 3 or period 5। यार अगर ये period 3 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो इट मस्ट बी कैल्शियम। और अगर ये period 5 है देन इट मस्ट बी स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का सिंबल होता है Sr। फिर वो आपसे कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, XOH नेगेटिव इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर लेस सॉल्युबल है तो इसका मतलब इट मस्ट बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, because solubility of group 2 hydroxides increases down the group, right? तो इसका मतलब this must be magnesium nitrate also. So when you heat it, it decomposes and gives you magnesium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas, and that is the balanced chemical equation. तो आप नोट करें, आपके पास जो आइडेंटिटी ऑफ एक्स है वो मैग्नीशियम होगा, और जाहिर सी बात है ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। So right answer obviously is going to be B. Okay. Question number 21. Which statement comparing magnesium and barium or their compounds is correct? Magnesium reacts with dilute hydrochloric acid more rapidly than barium. Not more rapidly, less rapidly. Because magnesium less reactive होता है as compared to barium. Because down the group reactivity increases. Option A is incorrect. Option B. 1 mole of magnesium carbonate gives off greater amount of gas. अगर मैं 1 mole of magnesium carbonate को डिकम्पोज करूंगा तो इट विल गिव 1 mole of carbon dioxide. On the other hand, जब मैं 1 mole of barium carbonate को dilute hydrochloric acid से रिएक्शन करवाऊंगा तो obviously I'll get 1 mole of carbon dioxide gas. So बेटा 1 mole of carbon dioxide दोनों केसेस में मुझे मिल रहा है। So अगर मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब ग्रेटर अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा मुझे, टेक्निकली मुझे यहां पर सेम अमाउंट मिलेगा, which is why B is also incorrect.
The solubility of magnesium sulfate in water is greater. That's true. Because the solubility of barium sulfate in water, that's true. I believe C is going to be the right answer, but D भी देख लेते हैं. Magnesium carbonate undergoes thermal decomposition less readily. By the way, more readily. Because of the high charge density of magnesium ion as compared to the barium ion. All right. So magnesium ion has high charge density. So charge density is ज़्यादा, polarizing power ज़्यादा, thermal decomposition becomes easier. So thermal decomposition takes place more readily. Okay. So D is also incorrect. Let's move on to the next question. Question number 22. The color of silver halides differ. अब आप जानते हैं कि ये white precipitates बनाता है, ये creamy और ये yellow. लिख देते हैं जनाब, white, creamy और ये बनाएगा yellow. The solubilities of these halides in aqueous ammonia also differ. आप जानते हैं insoluble होता है ये. आप जानते हैं ये partially soluble होता है. और आप जानते हैं कि ये soluble होता है. वो कह रहे हैं which row is correct. तो color of AgBr is cream. Silver halide that is most soluble in aqueous ammonia. तो भाई तीनों में से ये insoluble है, ये partially, ये fully soluble. तो सबसे ज्यादा soluble कौन सा होगा? Silver chloride. So right answer obviously is going to be an A. Okay. Let's move on to the question number 23. The name chlorate is used for an anion consisting of chlorine and oxygen only. ये मैंने बहुत सारे क्लोरेट पढ़ाए हैं आपको सिलेबस में. ये है क्लोरेट 1 आयन और इस क्लोरेट 1 आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. ये है क्लोरेट 5 आयन्स और इस क्लोरेट 5 आयन्स में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, राइट? In a molecule of ICl, the iodine atom has an oxidation number of X. By the way, chlorine is more electronegative element, so it has -1 charge. And obviously, iodine has +1 charge. इसका मतलब इस ICl में iodine चार्ज जो है वो आयोडीन का वो +1 है. यानी इस तरह के क्लोरेट के साथ चार्ज आ रहा है, टैली कर रहा है ना? एंड द क्लोरीन एटम हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Y. तो क्लोरीन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो टेक्निकली -1 है. सही? यहां लिख देते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स -1. वो कह रहे हैं व्हेन ICl इज एडेड टू वाटर आयोडीन इज रिड्यूस्ड. ठीक है, ये -1 है तो ये सॉरी ये +1 है तो ये कन्वर्ट हो गया 0 में. सो टेक्निकली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, इसलिए रिड्यूस हो गया. ठीक है, दैट्स ट्रू. वो कह रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ X और Y इज करेक्ट. X is the same as the oxidation number of chlorine in the chlorate ion form when chlorine is added to cold NaOH. Why when chlorine is added to cold NaOH, the equation for the reaction was sodium chloride, sodium chlorate 1 and water. अब इस सोडियम क्लोरेट 1 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1. अब वो क्लोरेट कह भी रहे हैं आपसे, है ना? So X is the same oxidation number of chlorine. So X की वैल्यू कितनी थी? +1. और इस क्लोरेट आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +1. तो इसका मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है, राइट?
तो जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Option B, X is the same oxidation number of chlorine in the chlorinated form when chlorine is added to hot aqueous NaOH. When hot aqueous NaOH is used, equation was NaCl, NaClO3 and water. और याद रखिएगा कि इस क्लोरीन में यानी इस क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. तो भाई यहां पर इस क्लोरेटाइन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जबकि X की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, तो सेम तो नहीं हुई, इसलिए ये गलत. आई थिंक बाकी भी इसी तरह से ठीक है. क्लोरेट आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और Y जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो ये सेम तो नहीं हुआ. इसी तरह से यहां पर भी सेम नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये -1 है और क्लोरेट आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है. क्यों? क्योंकि हॉट NaOH यूज कर रहे हैं, तो ये भी गलत. सही है. क्वेश्चन 24. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अमोनियम आयन इज बेसिक. दैट्स रॉन्ग. Ammonium is a conjugate acid, which means it is acidic in nature. Option A is wrong. Nitrogen monoxide reacts with peroxyacetyl nitrate. Wrong. It reacts with unburnt hydrocarbons. To give photochemical smoke, which is also called PAN, जिसको एग्जाम में यहाँ लिखा हुआ है पर ऑक्सोएसिटाइल नाइट्रेट. पर ऑक्सोएसिटाइल नाइट्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. तो बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है, ये रिएक्शन नहीं करता. रिएक्शन होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के दरमियान, तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है. इसलिए ये भी गलत हो गया. Nitrogen dioxide catalysis, oxidation of atmospheric sulfur dioxide. That's true. We have done the whole scenario both in kinetics and in organic chemistry. So right answer is going to be C. Question 25. The diagram shows the structural formula of a hydrocarbon molecule Q. How many carbon atom in a molecule Q are sp2 hybridized? भाई अगर sp2 hybridized है तो आप नोट कीजिए, it must be double bonded carbon atom. सो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम चेक करें. ये फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये थर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये फोर्थ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है. तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को क्यों नहीं लिया. मैंने इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस कार्बन एटम के टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 4. तो अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करनी होगी तो मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लूंगा. सो अराउंड दिस कार्बन वी हैव 2 सिंगल बॉन्ड and a 0 lone pair, which means hybridization is going to be sp instead of sp2, and so this carbon shows linear geometry. So ये कार्बन sp hybridization शो कर रहा है instead of sp2, right? इसलिए मैंने इस कार्बन को इग्नोर कर दिया, मैं इस कार्बन को कंसीडर नहीं करूंगा. ओके. 26. Compound X is found in cell walls of the some bacteria. The structural formula is shown. आप नोट कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिकॉज स्टेरियो आइसोमर्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ओके. सो यहां से आपको ज्योमेट्रिकल मिल जाएगा. आप नोट करें, दिस इज गोइंग टू बी योर कायरल कार्बन एटम. आप नोट करें, दिस इज गोइंग टू बी योर कायरल कार्बन एटम, बिकॉज एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं. सो 2 to the power n का फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर स्टेरियो आइसोमेरिज्म. हमारे पास 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं और एक डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर 2 to the power 3 करेंगे. 2 to the power 3 इज बेसिकली 8 आइसोमर्स. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8 isomers. 2 to the power 3 is basically 8
So right answer obviously is going to be D. Structural isomerism only should be considered when answering this question. How many straight chain isomers are there with molecular formula? By the way, straight chain isomers क्या रहे हैं? Number one, number two, structural isomerism only, no stereoisomerism. वैसे इसमें stereoisomerism यानी ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं देखना है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड मुझे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं वन बाय वन, तो चलो ड्रॉ करते हैं. CH3, CH2, CH2, C, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, and this one is 4. सही है. So ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो. I think I need more space. I need more space because नाम भी देने हैं, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं. So let's use another page. Let's use another page. My bad. Hold on. तो बहुत कम जगह है, मैनेज नहीं कर सकेंगे हम इसको. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. ये हमारा फर्स्ट आइसोमर होगा CH3, CH2, CH2. how many carbon atoms? 4. और ये होगा CH, और ये क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन, और इसका नाम होगा 1,1 डैश डाइक्लोरो. सही है. सेकेंड CH3, CH2, CH, एंड देन CH2. ये Cl हमने फिक्स कर दिया, इस क्लोरीन को उठाकर हमने ये इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया. So it's become 1,2 dash dichloro. फिर हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को उठाकर यहां शिफ्ट कर देंगे, और ये CH2Cl एज इट इज रखेंगे. So 1,3 dash dichloro, right? फोर्थ CHO, फोर्थ में क्या करेंगे कि ये क्लोरीन उठाकर यहां शिफ्ट कर देंगे. So it becomes CH2Cl, CH2, CH2, CH2Cl. So ये हो जाएगा 1,4 dash dichloro. फिफ्थ दोनों क्लोरीन इसी कार्बन एटम पे अटैच कर दीजिए, यानी एक ही कार्बन से दो क्लोरीन अटैच कर दो. 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. तो ये हो जाएगा 2,2 डैश डाइक्लोरो, राइट. सिक्स्थ CH3, CH, Cl, CH, Cl, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. ये हो जाएगा 2,3 डैश डाइक्लोरो. ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, सब ब्यूटेन है ये, राइट. सो टोटल मेरे पास कितना आइसोमर्स बने? 6 बने. सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए. स्ट्रेट चेन में तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, और मैंने ऑप्टिकल देखना नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा है, राइट. सो आई थिंक सो. और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर मैं इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये 2 3 हो जाएगा, ये बना दिया मैंने. इसको उठाकर अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बना दिया मैंने. सही है. 6 आइसोमर्स होंगे. ऑल राइट. सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए.
Next question. What is true of every nucleophile? Every nucleophile has a lone pair, so it donates its lone pair. Okay. Question number 29. The diagram shows a systematic route to produce 1-methyl cyclohexanol. आप सब जानते हैं कि जब मैं HBr से रिएक्शन करवाऊंगा इसको, सो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट में इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ऐड होगा, इस कार्बन पे H, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सो टेक्निकली यहां पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। सही है। यानी फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिकोव रूल है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब आप नोट करें सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ इस Br की जगह पे OH आया है। सो जब Br की जगह पे OH लेकर आना है तो आप वाटर यूज कर लेंगे, और सॉरी NaOH भी यूज कर लेंगे, वाटर की ऑप्शन है, नहीं तो NaOH यूज कर लो। बाय द वे यहाँ वाटर भी हो सकता है या NaOH भी हो सकता है, सिंस NaOH is given, which is why A is going to be the right answer, because examiner is looking for reagent Y. तो reagent Y आपका NaOH हो सकता है या वाटर हो सकता है, NaOH given है, हमने उसको ऑप्ट कर लिया है। क्वेश्चन 30. X and Y are reagents required to convert 1 bromopropane into butanoic acid. आप नोट करें यहाँ पर 1 एक ब्रोमीन है, उसकी जगह पे एक साइनाइड आया और फिर साइनाइड COH में कन्वर्ट हो गया। टेक्निकली कार्बन एटम इंक्रीज हुई है, विच मींस इट इज अ स्टेप अप रिएक्शन, और स्टेप अप रिएक्शन के लिए जरूरी है कि हम हमेशा पोटेशियम साइनाइड यूज करें इन इथेनॉल, एंड ऑब्वियसली इसको हम एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो ये जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH। सो 3 कार्बन एटम थे आपके पास, टेक्निकली अब 4 कार्बन एटम है, तो स्टेप अप रिएक्शन हो रहा है बिकॉज आपने कार्बन एटम इंक्रीज करें। एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द आइडेंटिटीज ऑफ रिएजेंट X एंड Y। तो रिएजेंट X जो है वो पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल है, और इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और इसका एक ऑल्टरनेट रिएजेंट ये भी था, अगर आपको याद हो, इसका एक ऑल्टरनेट रिएजेंट ये भी था, एक्वस HCl। सो एक्वस HCl यहाँ है, एक्वस HCl यहाँ है, राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। ओके, बाय द वे एक चीज आपको बता दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से एग्जामिनर ने पिक किया है और ये आपको दिया है क्वेश्चन, तो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन रिपीट होगा वो मैं बता दूंगा आपको, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 31. द टेबल शोज 3 sets of reagents and conditions, right? Which set of reagents and conditions can be used to produce 2-chloro-2-methylpropane? By the way, सबसे पहले तो 2-chloro-2-methylpropane का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए भाई। एग्जामिनर कह रहे हैं प्रोपेन 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन। उसके बाद एग्जामिनर कह रहे हैं 2-क्लोरो, तो इसके मतलब सेकंड कार्बन एटम के साथ क्लोरीन अटैच करें। फिर एग्जामिनर कह रहे हैं 2-मिथाइल, तो एग्जामिनर कह रहे हैं यहाँ पर भी CH3 मेंशन करें। इसका मतलब भाई ये भी CH3 होगा और ये भी CH3 होगा। भाई ये है आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शियल अल्काइल हैलाइड। सही है, तो पहली तो चीज ये कि टर्शियल अल्काइल हैलाइड है। सो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये सही बात है या गलत? बात तो सही है। क्यों, जरा देखिए, फर्स्ट को देख लेते हैं। जो फर्स्ट है उसमें आपके पास CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH3 है, और ये भी CH3 है, और HCl से आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑब्वियसली ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्ट में इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 C CH3, इस कार्बन के साथ आएगा ब्रोमीन, और इस कार्बन के साथ जब आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। अगर आप देखें तो ये CH3 हो गया है, तो ये भी CH3, ये दोनों भी CH3, और ये Cl। माय गॉड,
आई डोंट नो कि मुझे क्यों पसंद है इतना ब्रोमीन, ये Cl। तो बेटा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड को देखिए, ये एग्जामिनर ने आपको रिएजेंट दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है, तो हम रिएजेंट सबसे पहले लिखते हैं। दिस इज CH3 C CH3, इस कार्बन के साथ एक OH है और इस कार्बन के साथ एक CH3 है। आप इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे होगा, ये रिएक्शन भी एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे होगा। OH हट जाएगा, क्लोरीन उसकी जगह पर अटैच हो जाएगा। जब क्लोरीन अटैच होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2 प्लस HCl। अब आप नोट करें कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है। थर्ड को देखिए, थर्ड में आपके पास ये कंपाउंड है और ये क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, सो ये टेक्निकली एल्केन है, तो एल्केन अल्ट्रावायलेट लाइट से रिएक्शन करते हैं, तो सही कह रहा है वो। हम बना देते हैं CH3 C CH3 H NCA3 रिएक्शन से क्लोरीन के यूवी लाइट से, यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन, दोनों मिलकर बनाएंगे HCl और H की जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से। सो नोट करें ये कंपाउंड और उसकी कंडीशन एंड देयरफॉर A is going to be the right answer. Okay, next question. What are the only structures formed when butane 2-ol is heated with concentrated H2SO4? When alcohol is treated with concentrated H2SO4, reaction is going to be dehydration. First thing, when butane 2-ol is dehydrated, obviously we'll get but2ene and but1ene. But2ene exhibit geometrical isomerism, so I'll get cis but2ene and trans but2ene and but1ene, which means जब butane 2-ol की dehydration होगी, I'll get 3 different alkenes, right? So यहाँ पर ऑप्शन गलत क्योंकि सिर्फ 2 एल्कीन है, यहाँ पर भी ऑप्शन गलत क्योंकि सिर्फ ये 2 एल्कीन है। अब यहाँ पर 3 एल्कीन्स हैं, यहाँ पर भी 3 एल्कीन्स हैं, इसका मतलब दिस B and D एग्जिबिट कंपटीशन, राइट? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आप नोट करें ये सिस आइसोमर है, लेकिन ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होकर, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बाय द वे ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस और ये but1ene, which is why B is going to be the right answer. Question number 33. The compound leaf alcohol is partially responsible for the smell of newborn grass. What is formed when leaf alcohol is oxidized using excess of hot acid white K2Cr27? By the way, excess of hot acid white K2Cr27 cannot react with alkene, which is why alkene का जो functional group है वो intact रहेगा, उस पर कोई change नहीं आएगा। On the other hand, आप note करें ये है CH2OH, which is your primary alcohol, which is your primary alcohol. तो obviously जब ये oxidize होगा in the presence of K2Cr2O7, तो obviously it will turn to carboxylic acid. तो इसका मतलब ये CH3 CH2 as it is, ये CH as it is, double bond as it is, CH as it is, CH2 as it is, and this CH2OH will turn to CWH, and which is why B is going, oh sorry, C is going to be the correct option. Next question, question number 34. Compound X does not react with tolerance reagent. इसका मतलब could be ketone, क्योंकि कीटोन में टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन नहीं होता। Forms yellow precipitate with alkaline aquacidine. That must be कि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है। Does not react with sodium, इसका मतलब नो अल्कोहल एंड नो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दोनों में रिएक्शन हो जाता है सोडियम के साथ। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे देगा। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि आप नोट करें
CH3CO ग्रुप अवेलेबल है तो आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसमें टॉलेंस का टेस्ट भी नहीं होगा, ये सोडियम मेटल से भी रिएक्शन नहीं करेगा। बाय द वे ये एस्टर है, एंड एस्टर कांट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और जब उन्होंने कह दिया कि सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब अल्कोहल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। बाय द वे क्वेश्चन 34 भी रिपीटेड है, ठीक है। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन माय टॉपिकल पास पेपर बुक। Question 35, which compound can undergo nucleophilic addition? Nucleophilic addition takes place in aldehyde and ketone. ये भी previous पेपर से डिटरमिन किया एग्जामिनर ने क्वेश्चन, वहां से पिक किया है, ये भी टॉपिकल पास पेपर में होगा। So aldehyde and ketone, this is not aldehyde ketone, this is not aldehyde ketone, this is not aldehyde ketone. Right answer is obviously going to be an A because ये aldehyde है। आप इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं, ये अल्काइल हैलाइड है, इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इथेन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये इथीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये एल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आंसर इज बी, ऐसे भी देख सकते हैं आप। 36, दिस कंपाउंड इज एन एस्टर। ओके, और जो एस्टर का स्ट्रक्चर लिखा है उसके हिसाब से ये एसिड का पार्ट है, और 3 कार्बन एटम का एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। और ये अल्कोहल का पार्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर 1 कार्बन एटम का अल्कोहल है, इट मींस इट इज मिथेनॉल। Right, the product of this reaction are reacted with lithium aluminum hydride to form molecules Y and Z. So जब आप इस प्रोपेनिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करवाओगे, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 स्टेप रिडक्शन होगी एंड यू विल गेट प्रोपेनॉल, राइट। सो टेक्निकली ये CO2H कन्वर्ट हो गया CH2OH में। And methanol has a formula of CH3OH। तो CH3OH कहां पर है, ये लिखा हुआ। प्रोपेनॉल कहां पर लिखा हुआ है, प्रोपेनॉल, और ये बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो इट इज प्रोपेन 1 ओल। सो प्रोपेन 1 ओल ये लिखा हुआ, ये प्रोपेन 2 ओल है। तो ये गलत, ये इथेनॉल नहीं होगा, ये भी गलत, यहां पर इथेनॉल है, ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज डी। तो सबसे पहले इस एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट प्रोपेनोइक एसिड एंड मेथनॉल। और फिर जब प्रोपेनोइक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो इट विल टर्न टू प्रोपेन 1 ओल। बाय द वे मेथनॉल इटसेल्फ इज एन अल्कोहल, तो उसकी फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, 37, a sample of propanic acid of mass 3.70 gram react with an excess of magnesium. So this is your propanic acid. आप उसको मैग्नीशियम से ट्रीट करवाएंगे, so you will get magnesium propanoate and hydrogen gas. सही है। So when propanoic acid is treated with excess sodium, equation is going to be like this.
It must be sodium propanoate and hydrogen gas. जाहिर सी बात है, इस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 2 हाइड्रोजन, सो वी नीड पुट 2 here, 2 here and 2 here. ओके, और जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 लगाया मैंने प्रोपेनोइट के साथ, तो ये भी 2 होगा आपके पास. ओके, 3.70 ग्राम, यानी मास ऑफ प्रोपेनिक एसिड इन बोथ द केसेस वुड बी सेम. सो MR ऑफ प्रोपेनिक एसिड निकालो. (15 + 14 + 45 is going to be 74. चलेंगे, अब करते. सबसे पहली बात, मोल्स ऑफ एसिड डिटरमिन करते हैं. 3.7 divided by 74, so 0.05 moles. सही है. याद रखिएगा कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है. अगर आपने 0.05 मोल्स कैलकुलेट किए तो इसके कितने मोल्स होंगे? तो 0.05 divided by 2 you will get, 0.05 divided by 2 you will get 2.5. My god, 0.05 divided by 2 you will get 0.025 moles of hydrogen gas. I need to find out the volume of hydrogen gas. So 0.025 को मल्टीप्लाई कर दो 22,400 से. Why 2400? क्योंकि STP का वॉल्यूम कह रहे हैं इन बोथ द केसेस. STP होता है 22.4 dm cube और 22400 cm cube. So multiply by 22400 cm cube is going to be 560 cm cube. ये रहा 560, ये रहा 560. ठीक है. तो सॉरी, सोडियम के साथ नहीं है, ये है मैग्नीशियम के साथ. ठीक है जी. अच्छा, ये मैंने मैग्नीशियम की कैलकुलेशन की है, अब सोडियम की कर लेते हैं. तो मोल्स ऑफ सोडियम प्रोपेनिक एसिड तो सेम ही है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है. अगर आपने 0.05 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे, 0.025. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तो 0.025 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं STP के वॉल्यूम से, विच इज 22400 cm क्यूब. तो यहां से कितना हो जाएगा? 560 cm क्यूब. सो ये भी 560 है. सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए. Question 38. Which statement about this compound is correct? My goodness, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं. This is CH2 double bond C CH3 CH2 CO O CH3. By the way, it is an ester. ये एसिड का पार्ट है, इसका एसिड ये होगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3. होल्ड ऑन, स्पेस इतनी कम देते हैं, ये स्ट्रक्चर इतने लेंथी होते हैं. CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 एंड देन COH. ये एसिड हो गया, और इसका जो अल्कोहल है वो मिथेनॉल होगा. CH3OH is methanol. ठीक है. So methanol is a primary alcohol. It is not a secondary alcohol, which means option A is incorrect. It can made using ethanoic acid and a suitable alcohol. भाई ethanoic acid नहीं है, एक डिफरेंट एसिड है जिसमें अल्कीन भी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? ये भी गलत. It gives a positive test with alkaline aqueous iodine. यहाँ पर CH3CO ग्रुप अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी CH3CO ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा. And so D is going to be the right answer. Why? Because when treated with hot concentrated gasified KMnO4 gives this compound as one product.
बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड K1O4 से ट्रीट करवाऊंगा, सो ये जो आपके पास डबल बॉन्डेड सी है, इट विल टर्न टू कीटोन, ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इस डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, और ये CH2 COOH एज इट इज। सो दैट्स ट्रू, ये बन रहा है हमारे पास, एग्जैक्टली exactly, सही है। यानी याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कीटोन में, सही है। ये CH2 एज इट इज और ये COOH भी एज इट इज। So D is going to be the right answer. Question 39. Synthetic resins can be made from polymerization of a variety of monomers, including pro-2-in-1-ol. Which structure represents the repeating unit in the polymer? Polypro-2-in-1-ol. Okay, पहली बात कि ये मोनोमर है, दूसरी बात ये एल्कीन है, एंड तीसरी बात एडिशन पॉलीमर बनेगा इसके थ्रू। सो मैं इस मोनोमर को इस तरह से लिख लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ एक H है और एक CH2OH है। बाय द वे, आप CH2OH को यहाँ लिख सकते थे और इस वाले H को यहाँ लिख देते, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब अगर इससे आपने पॉलीमर बनाना है, तो ये CH2 एज इट इज, इस C के साथ ये H एज इट इज, ये CH2OH एज इट इज, एंड ऑब्वियसली ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये ओपन होगा, इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा। तो अब चेक करें ये कहाँ लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH2 CH एंड देन CH2OH। तो चेक कीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बी में लिखा हुआ है, एंड बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 40। विटामिन सी हैज द स्ट्रक्चर शोन। यार सबसे पहले तो विटामिन सी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करो, 1 2 3 4 5 6। So we have 6 carbon atom in this vitamin C. ठीक है, the mass spectrum of vitamin C has a molecular INP 176. So basically this is the molecular mass of the compound. And a relative abundance of this, तो ये abundance of molecular INP है। Examiner is looking for the abundance of M+1 peak. So बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ये हमने किया है क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। ये क्लास में हमने किया था n equals to 100/1.1 abundance of M+1 peak over abundance of molecular ion peak। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा n equals to इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, n into 1.1 into abundance of molecular ion P equals to 100 into abundance of M+1 P, right? n की वैल्यू हमारे पास 6 है, ये 1.1 है, abundance of molecular ion P 7% है, ये 100 फिक्स्ड है, और ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है abundance of M+1 P, राइट? तो यहां से अगर मुझे abundance of M+1 पीक डिटरमिन करना हो, तो ये जगह 6 into 1.1 into 7 divided by 100, let me calculate the value, 6 into 1.1 into 7
46.2 divided by 100, ये हो जाएगा आपके पास 0.462, 0.42462%. The right answer is going to be an A. Okay. I hope it makes sense to you. Thank you very much, guys.